کہ جج مخالف توہین آمیز الفاظ پر توہین عدالت کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بیان حلفی جمع کرا دیا۔ عمران خان نے اپنے بیان حلفی میں عدالت سے غیر مشروط معافی نہیں مانگی۔ بیان حلفی میں کہا گیا کہ عدالت اطمینان کے لیے مزید کچھ کہے تو اس حوالے سے مزید اقدام کرنے کو تیار ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ جج مخالف توہین آمیز الفاظ پر توہین عدالت کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بیان حلفی جمع کرا دیا، لیکن عمران خان نے اپنے بیان حلفی میں عدالت سے غیر مشروط معافی نہیں مانگی۔ اسی معاملے پر مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ صاحب اور قانونی ماہر اور جے یو آئی کے رہنما ہیں کامران مرتضیٰ، اور مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کے وقت کا۔ سب سے پہلے رخ کریں گے قمر زمان کائرہ صاحب کا۔ قمر زمان کائرہ صاحب، آج عمران خان کی جانب سے بیان حلفی تو جمع کروا دیا گیا ہے لیکن غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی ایک دفعہ پھر سے، کیا کہیں گے آپ؟ خان صاحب کا وطیرہ ہے، وہ ٹیسٹر لگتا ہے دیکھتے رہتے ہیں۔ اب بھی میرے خیال میں ویسی موڈ میں ہے۔ یہ بات تو حامد خان صاحب نے پہلے ہی بیان کر دی تھی، جو خان صاحب کے وکیل ہیں، کہ ہم معافی نہیں مانگ رہے، انکنڈیشنل اپالوجی نہیں ہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت کو محسوس ہوا ہے تو ہم الفاظ واپس لیتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی ایک درمیانی کا رستہ نکالنے کی بات ہے۔ وہ انکنڈیشنل اپالوجی کا ذکر نہیں کر رہے۔ یہ بات انہوں نے پہلے کہہ دی تھی۔ اب یہ خان صاحب جانے، عدالت جانے، عدالت اپنا فیصلہ سنا لے پھر اس سے بات کریں۔ جی ٹھیک ہے، قمر زمان کائرہ صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ کامران مرتضیٰ صاحب کے جانب آنا چاہوں گی۔ کامران صاحب، آج عمران خان کی جانب سے معافی نہیں مانگی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس اقدام سے آنے والے وقتوں میں مشکل ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیے، یہ عدالت کے کہنے پہ جو ہے نا مزید کچھ کہے تو میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ منشا نہیں ہے معافی مانگنے کی یا اپنے آپ کو پلیس کرنے کی ایٹ دی مرسی آف کورٹ۔ یہاں پہ جو معافی ہوتی ہے قانون کے مطابق وہ بھی پہلی فرصت میں، اور وہ پہلی فرصت میں غیر مشروط معافی ہوتی ہے، اور ایک طرح سے وہ ایڈمیشن ہوتا ہے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس گیٹ کا۔ تو یہاں پہ ڈفرینٹ برڈس لگائے جا رہے ہیں، اور جو پہلے بھی ہو رہا ہے وہ فرمائش پہ ہو رہا ہے، اور بعد میں بھی میں فرمائش پہ آپ کے کرنے کی تیار ہوں۔ تو یہ فرمائشی پروگرام جو ہے میرا خیال ہے یہ قانون کی اس میں مطابقت میں نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز قانون کی مطابقت میں نہیں ہے تو اس کو پھر جو اعلیٰ عدالتوں نے یا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ عدالتوں نے جو اس میں پیرامیٹرز طے کر دیے اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، کامران مرتضیٰ صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، کیا کہیں گی آج آپ عمران خان کے اس بیان حلفی کے اوپر؟ جی شکریہ۔ دیکھیے، عمران خان صاحب نے احسان کیا جی کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک لیٹر لکھ کے دے دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کل وہ وہاں بھی گئے تھے میڈم دیپا صاحبہ کے دفتر میں، وہاں پہ بھی اینک لگا کے، گوگلز لگا کے، اور ایسے اکڑ میں گئے اور جا کے جو ہے وہ لیڈر کو کہا کہ بتا دینا میں آیا تھا۔ اس طرح کی معافی وہ چاہتے ہیں، وہ اس ملک کے لاڈلے ہیں، وہ کسی کی بھی انسلٹ کر سکتے ہیں، وہ کسی کے بھی الزام لگا سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں، لیکن ان سے معافی مانگنے کے بارے میں نہ کیا جائے۔ اور یہ جو تھوڑا بہت اب ان کو کرنا پڑ رہا ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے وہ اس توہین عدالت نوٹس کے بعد جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی شاید بچت نہ ہو سکے اس کے اندر، تو انہیں بادلنے میں خاصہ جو ہے یہ تھوڑی بہت ڈرامے بازی کرنی پڑی ہے۔ اور وہ کبھی بھی عمران خان جیسا آدمی جو ہے وہ نہ کبھی اپنی غلطی تسلیم کر سکتا ہے اور نہ کبھی وہ کسی سے کھلے دل سے معافی مانگ سکتا ہے۔ اس کا کام صرف لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا ہے، لوگوں کی توہین کرنا ہے اور دیکھیے، یہ تو ظاہر عدالت کا پروگریٹو ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالت کو اس کے اوپر لینینٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ہی عمران خان جب سیاست میں ہے، کسی کی پگڑی سلامت نہیں ہے، کسی کو وہ جو ہے اوے توے سے کم وہ بات نہیں کرتے، گالی گلوچ ان کا ایک جو ہے وہ ٹریڈ مارک ہے ان پر، ان کی پارٹی کا۔ اور اب بھی عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی، انہوں نے صرف ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے، سو اس کے اوپر اگر عدالت جو ہے وہ ان کو معاف کر دے گی تو یہ عمران خان کے لیے ایک اور بہت بڑا رستہ کھولنے والی بات ہوگی کہ اس کو کھلی چھٹی مل جائے گی کہ بس ٹھیک ہے بےزتی کرو، اور اس کے بعد جو ہے ایک لیٹر جمع کرا دینا اور بات ختم ہو جائے گی۔
ठीक है, अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थीं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा भी और JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। तीनों का बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि इमरान खान का साजिश का बयानिया एक बार फिर मुस्तरद हो गया। सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी कहते हैं साजिश का कोई सबूत नहीं। ARY न्यूज़ पर गुफ्तगू के दौरान वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने काशिफ अब्बासी से ही सवाल कर दिया, आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि क्या अमेरिका के कहने पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ? तो काशिफ अब्बासी ने जवाब दिया, मुझसे जब कहते हैं साजिश हुई तो मेरे पास कोई सबूत नहीं ये कहने के लिए कि जी साजिश हुई है। तो लगता है कि जो भी इमरान खान के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस आया था इसमें अमेरिका पीछे था। मैं आपसे एक छोटा सवाल देता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आप अपनी ईमानदारी से मुझे बताएं कि आपको लगता है कि अमेरिका के कहने पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था? मैं आपको हल्फिया कह देता हूँ और ये मैं टीवी पर बात कर चुका हूँ। मुझसे जब कहते कि ये साजिश हुई है, मैं कहता हूँ मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कहने के लिए कि साजिश हुई, लेकिन क्या साइफर है? क्या आपको लगता है कि जो भी इमरान खान के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस आया था इसमें अमेरिका पीछे था? मैं आपसे एक छोटा सवाल देता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आप अपनी ईमानदारी से मुझे बताएं कि आपको लगता है कि अमेरिका के कहने पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था? मैं आपको हल्फिया कह देता हूँ और ये मैं टीवी पर बात कर चुका हूँ। मुझसे जब कहते कि ये साजिश हुई है, मैं कहता हूँ मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कहने के लिए कि साजिश हुई, लेकिन क्या साइफर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर मौला बख्श चांडियों का कहना है, इमरान खान ने जो रवैया इख्तियार किया है उनकी सियासत खत्म होने वाली है। सब सियासतदान मायूस हैं। सियासत में ये रवैया मुल्क की तरक्की में रुकावट है। इमरान खान ऑडियो लीक स्कैंडल में बेनकाब हो चुके। मजीद जानेंगे, मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बताएगा मजीद क्या कहना है उनका। के सीनियर रहनुमा और सेनेटर हमारे साथ मौला बख्श चांडियों साहब है। चांडियों साहब, पहले तो आपकी सेहत के हवाले से लोग बड़ी दुआएं कर रहे थे, क्या सूरत हाल है इस वक्त? PM हाउस के अंदर रिकॉर्डिंग्स लीक हो रही हैं और ख़ास तौर पर फिर इसको जवाब बनाकर तहरीक साहब ने पहले इसके ऊपर बहुत सारी बातें की और जो रिकॉर्डिंग इमरान खान साहब की अब सामने आई है उस पर आप क्या समझते हैं? सीरियस कंसर्न है? मेरा ख्याल है, पहली बात तो मैं शुक्रगुजार हूँ जो लोग मेरी इस तकलीफ के लिए दुआ कर रहे हैं, मुझे तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। दूसरी बात जो आदित्य वाली बात है, ये नाअहली है इदारों की, जो भी जिम्मेदार है, मैं किसी को नहीं कह रहा, जो भी जिम्मेदार है वो नाअहल है, ये मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक है। लेकिन ऐसी बातों को बहाना बनाकर मुल्क के खिलाफ, मुल्क के निज़ाम के खिलाफ बोलना, वो भी तो साजिश से कम नहीं है। जहाँ तक पहलू का खान साहब के बहुत से झूठ जाहिर होता है। अब खान साहब ज़्यादा अरसा, वैसे ही मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि दिन ब दिन सियासत उकड़ती जाएगी। उन्हें रास्ता वो इख्तियार किया है जिसमें सियासत नहीं चल सकेगी पाकिस्तान। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियों साहब, जो कि मशहूर हैं सियासत में एक खूबसूरत गुफ्तगू करने के हवाले से। तो उन्होंने मशवरा दिया है कि इस वक्त खान साहब को सियासत करनी चाहिए और सबके साथ बातचीत करनी चाहिए। दूसरी जानिब उनका कहना था कि इस वक्त सियासत के अंदर जिस तरीके इमरान खान की ऑडियो लीक्स हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। अब कुछ बात करेंगे किसान इत्तेहाद एहतजाजी धरने की। मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम हो गए। किसान इत्तेहाद यूनियन ने जल्द रेड जोन की जानिब पेशकदमी का ऐलान कर दिया। सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। किसानों ने अनोखा एहतजाज करते हुए ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। इसी पर बात करेंगे, फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताएगा इस एहतजाज के हवाले से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद खयाबान चौक में किसान इत्तेहाद यूनियन का धरना चौथे रोज में दाखिल हो चुका है। आज एक दफा फिर राना सनाउल्लाह की जानिब से किसान वक्त को बुलाया गया था, लेकिन उनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद मुजाहिरीन में बेचैनी फैल गई। तो दूसरी तरफ पुलिस की भारी नफरी दिहाड़ी अलर्ट होगी, अजाफी नफरी को भी तैनात कर दिया गया, क्योंकि किसानों ने मुतालबा न मानने की सूरत में रेड जोन की जानिब पेशकदमी का ऐलान कर रखा था और ये भी कहा गया था कि तमाम मुजाहिरीन पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे, जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ तमाम रास्तों पर कंटेनमेंट रखती है बल्कि खारदार तारे लगाकर भी रास्तों को बंद कर दिया है। जबकि चेयरमैन किसान इत्तेहाद यूनियन का ये कहना था कि राना सनाउल्लाह के जो तासरात हैं, उनका जो रवैया है, उनको बेहतर नहीं लगा। अगले से 2 से 3 घंटों में फैसला करेंगे कि रेड जोन की जानिब उन्होंने किस तरह से बढ़ना है। ताहम उनकी तरफ से यही ऐलान किया गया है कि वो जल्द रेड जोन की जानिब
इंतजामी पेश कदमी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक आपका। खैरपुर नातन शाह के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। खैमा बस्ती में मुकीम मुतासरीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। हमारे नुमाइंदे फयाज जाफरी गमजदा सैलाब मुतासरा वालिदैन के साथ मौजूद हैं, जिनकी 2 बच्चियां थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला है। मुतासरा खानदान इलाज के लिए किसी मसीहा का मुंतज़र हैं। मज़ीद बात करेंगे, फयाज जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज बताएगा। इस वक्त ज़िला दादू में मौजूद हूँ जहाँ पर खैरपुर नातन शाह के सैलाब मुतासरा एक फ़ैमिली के साथ एक टेंट सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज में टेंट सिटी का क़याम किया गया है, जहाँ पर एक टेंट में एक सैलाब मुतासर फैमिली के साथ में मौजूद हूँ, जिनका ताल्लुक़ खैरपुर नातन शाह से है। गुलाम फरीद मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनकी 2 बच्चियाँ जो हैं वो थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिन्हें हर 15 रोज़ के बाद जो है ब्लड की ज़रूरत होती है। सर ये मेरी बच्चियाँ हैं 2, मुझे वसत नहीं है मेरे को इलाज कराओ। बहुत महंगी टेस्ट है, मैं 3 महीने 1 महीने 15 दिन में इसको ब्लेड लगवाता हूँ। हम गरीब आदमी में 12-13 फुट मेरे घर में मकान में पानी है, कैन शाम में वो गिरा हुआ है, पट हो गया है, मैं कहाँ जाऊँ। दादू बुखारी कॉलेज में मैं बैठा हूँ, अभी इधर तो कोई सुख मुझे नहीं है। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरा फैमिली बहुत ही परेशान है। इनका ये कहना है कि इनके पास खाने के भी हर बार हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिराया जाता था, लेकिन इस बार रिलीफ का सुनकर शहरी भी खुश हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतें तो कम की हैं, लेकिन बाकी अशिया की कीमतें भी कम करें। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। तो जो सा है ना वो कम हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ें जो सी है ना वो भी तो कम होनी चाहिए ना। आप देख लें जो मेन चीज़ें हैं, जो उनसे आलू प्याज वो कहाँ जा रहा है, बिजली कहाँ जा रही है, उससे ही हमें फ़ायदा है और उनको भी कंट्रोल। पेट्रोल तो बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। पेट्रोल कम से कम नहीं तो 150 रुपये तो होना चाहिए ना। बिजली भी सस्ती होनी चाहिए, बिजली के बिल भी बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी तो पीस के हो रह गया है। जो बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट आ रही है, ये भी कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए कि सारा दारोमदार एक बिजली और पेट्रोल पे ही है। तो अल्लाह करे हमारा मुल्क जो है अच्छाई की तरफ जाए, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, सरकारी बंदे के लिए भी और प्राइवेट बंदे के लिए भी। फ़ायदा होगा, पेट्रोल कम होगा तो महंगाई कम होगी। डेली बेसिस की चीज़ें, राशन वगैरह वो नीचे आना चाहिए। अब जैसे ऑयल है वो 500 रुपये पहुँचा हुआ, वो आना चाहिए नीचे। 1.5 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर रेलवे मुलाजमीन कराची कैंट स्टेशन पर सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन का कहना है कि 2 माह होने जा रहे हैं, हमारे घर के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, हमारी तनख्वाहें बहाल की जाएं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान से, जो इस वक्त मुलाजमीन के साथ मौजूद हैं। नुमान बताएगा क्या कहना है मुलाजमीन का। या बिल्कुल 1.5 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर इस वक्त रेलवे के मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मुलाजमीन की बड़ी तादाद इस वक्त कैंट स्टेशन पर मौजूद है, जो कि अपनी तनख्वाहें बहाल करने के मुतालबा लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और जो है इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त मैं मुजाहिरीन के बीच में मौजूद हूँ और इनसे गुफ्तगू भी करूँगा। सर क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके? हमारा मुतालबात एक ही है और कोई मुतालबात नहीं है। हमें तनख्वाह दी जाए, हमारी तनख्वाह ड्यू डेट जो है वो है 15 तारीख, 15 की बजाय आज हो गई है पहली दूसरे महीने की, अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली। इसके अंदर आरटीएल, पावर, कैरेज एंड वैगन, ये तीनों डिपार्ट हमारे इकट्ठे हैं जो अभी भी एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं और खड़े हुए हैं। तो हमारी गुजारिश है कि हमें तनख्वाह दी जाए, हमें मजबूर न किया जाए इससे ज़्यादा, क्योंकि हमें उधार हमारे को बंद हो गई है। अब कोई उधार नहीं देता, सब ये कहते हैं आप गवर्नमेंट मुलाजिम, अभी तक आपको तनख्वाह नहीं मिली। तो मेरी गुजारिश है कि हमें तनख्वाह दी जाए और तनख्वाह के बगैर जितना सा हम काम करते रहें, अपनी गाड़ियों की फिटनेस करते रहें, आज भी कर रहे हैं, मगर आज हम मजबूर हो गए। जो हमें कोई दूध वाला दूध नहीं देता, उधार वाला उधार नहीं देता, राशन वाला राशन नहीं देता, जिस वजह से हम आज आए बाहर कि हमें तमाम डिपार्टों को तनख्वाह हो गया। बड़ी बात ये, और मैकेनिकल ब्रांच हमारी है, फिट हम देते हैं गाड़ी का, जब अगर हम फिट ना दें तो एक गाड़ी का इंच नहीं गाड़ी चल सकती, और उनको तनख्वाह नहीं दी गई। ये जुल्म खुदा का है। हम अपील करते हैं रेलवे मिनिस्टर साहब को, जो खुदारा साथ रफीक साहब, आप हमारे पर मेहरबानी करें, हमारे बच्चों के ऊपर रहम करें, इन गरीब इदारों के डिपार्टों को तनख्वाह दी जाए। और इनका ये कहना है कि 2 माह से हम काम अपना प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन हमें जो तनख्वाहें हैं वो बहाल नहीं की जा रही हैं। इंतजामिया से इनके मुतालबात हैं कि दोबारा बहाल की जाए ताकि जो घर का ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की लाहौर आमद हुई।
दाता दरबार पर हाजिरी दी। इसहाक डार ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। मज़ीद जानेंगे, फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसी बताएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जब मुल्क वापस आए उनके बाद आज उनका लाहौर में आमद हुई और इस हवाले से उन्होंने सबसे पहले जो है वो दाता की नगरी दाता दरबार पर हाजिरी दी। और यहाँ पर जब उनकी आमद हुई तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे और दीगर जो अमला था उनकी जानिब से इस्तकबाल किया गया। बाद उन्होंने जो है वो दरबार पर हाजिरी दी, वहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाई और इस हवाले से उनकी जानिब से मुल्की सलामती के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर दुआ भी की गई। और इस वक्त भी इसहाक डार साहब इस वक्त मौजूद हैं दाता दरबार में और यहाँ पर जो मुख्तलिफ हाजिरी दे रहे हैं और वहाँ जो यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। और इसके बाद जो है वो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि मीडिया से गुफ्तगू की करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह आपका। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कराची डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात हुए तो इंतज़ामी मसाइल आएंगे। कुछ डिवीजन्स में इलेक्शन पहले और कुछ पर बाद में होंगे ताकि इंतज़ामी और सिक्योरिटी इंतज़ामात बेहतर हों। ऑडियो लीक से मुताल्लिक कहा कि ये बहुत बड़ा अलमिया है। उन्होंने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से खुसूसी गुफ्तगू की है। मज़ीद कामरान से ही जानते हैं, कामरान बताएगा। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 16 अक्टूबर को कौमी असम्बली के 2 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से और 23 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बाकायदा तौर पर इसका कहा गया कि इलेक्शन होंगे। इसी हवाले से हम बात करने के लिए मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के साथ। शाह साहब बताएगा, बुनियादी तौर पर इस वक्त पूरा सूबा जो है वो सैलाब से मुतासर है। रिलीफ और उनको बहाली के हवाले से पूरा सूबा लगा हुआ है, हुकूमत मशीनरी तमाम अमला सारा उसमें लगा हुआ, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 23 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि मेरा पूरा सूबा डूबा हुआ है और 24 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पे तो इश्यूज़ अपनी जगह पे हैं। हैदराबाद डिवीज़न में तो इलेक्शन नहीं हो रहे और वहाँ पे हो भी नहीं सकते। कराची डिवीज़न में ज़ाहिर है सैलाबी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन इंतज़ामी तौर पर इश्यूज़ ज़रूर आएंगे। ख़ास तौर पर अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो वो इसीलिए कराए गए थे मरहलावार कि उसको प्रॉपर मॉनिटर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए कि कुछ डिवीज़न में हों, कुछ डिवीज़न में बाद में हों, कि हर जगह से इंतज़ामी तौर पर उसको प्रोटेक्ट किया जाए। सिक्योरिटी के होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो इस वजह से तो वैसे हम लोग तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। बल्दियाती इंतखाबात होने में ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि हो जाएंगे, होने चाहिए, लेकिन इंतज़ामी में भी क्योंकि हमारी इस वक्त वो इस वजह से मरहलावार थे कि दीगर डिवीज़न से फोर्सेस मंगा के और लोगों को मंगा के यहाँ पे इंतज़ामात किए जाते। अब तो सूरत हाल ये है कि यहाँ के लोग वहाँ गए हुए हैं इंतज़ामात संभालने के लिए। जो इस वक्त इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी थी, नेचुरल डिज़ास्टर है, तो वहाँ पे वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं उनकी मदद के लिए यहाँ से लोग गए। सिक्योरिटी का अमला भी गया हुआ है, दीगर बहुत सारे इदारों के लोग। बहुत शुक्रिया कामरान आपका। बताएं कि महकमा बल्दियात सिंध के निज़ाम को एक जालसाज ने चकमा दे दिया। अब्दुल नबी छानेऊ नामी शख्स ने खुद को कौंसिल का 16 ग्रेड का अफसर जाहिर किया और छाछड़ों के एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा हासिल कर लिया और 3 दिन तक तैनात भी रहा। इसी पर बात करेंगे, आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, ये गैर सियासी गैर जो सरकारी मुलाजिम है जिसने अपने आप को काउंसिल का 16 ग्रेड का अफसर जाहिर किया, अपनी फाइल जो है महकमा बल्दियात में पुटअप करवाई और 9 सितंबर को इनको जो है बतौर एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी छाछड़ो जिला थरपार कर तैनात किया गया। जब इस मामले का जो पता लगा सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह को, तो फौरी तौर पर इनका रिकॉर्ड तलब किया गया। जब रिकॉर्ड मौसूल नहीं किया गया तो इसकी गैर कानूनी तरीके से तैनाती करार देकर 12 सितंबर को इसको ओहदे से हटाने यानी इसका नोटिफिकेशन मंसूख किया गया। इस हवाले से इस वक्त महकमा एंटी करप्शन ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और महकमा बल्दियात से भी इस मामले का की रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ साथ इसी शख्स अब्दुल नबी छानेऊ जिसका ताल्लुक सांगड़ जिले के तहसील छिपरो से बताया जाता है, इसकी भी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन ये शख्स इस वक्त किनारा कश हो चुका है। महकमा बल्दियात के जो निचले सतह के अफसरान जिन्होंने फाइल की पुटअप की थी, उनके खिलाफ भी सेक्रेटरी बल्दियात ने तहकीकात का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका।